Hello, good morning, student. Vande Mataram. Today I will going to discuss about the latter part of the cardiac cycle. The cardiac cycle, it is a very important cycle for our body, for our life. We have previously discussed about the previous part of the cardiac cycle. The cardiac cycle divided in many events. These events are completed in the four type of chamber in the heart. The upper part of the heart that is called auricle part, and the lower part of the heart that is called ventricle part. Some events are found in the auricles and some events are found in the ventricles. These type of event present in between the two heartbeat. A cyclic changes are present in the heart. This is called the cardiac cycle. तो इस बात को हम एक समराइज तरीके से यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से कार्डियक साइकिल अपने अंदर यहाँ पर कंप्लीट होता है। यहाँ तो कार्डियक साइकिल के केस में एक बार मैं यहाँ रिकैप कर लूं कि हमने कार्डियक साइकिल को मेनली यहाँ पर फोर पार्ट में डिवाइड किया था, जो डिफरेंट यहाँ पर टाइम के साथ में ये कार्डियक साइकिल यहाँ चेम्बर के साथ में कंप्लीट हो रहा था। इसमें हम एट्रियम पार्ट की बात करें तो सबसे पहली इवेंट होती है एट्रियम डायस्टोल, दूसरी इवेंट होती है यहाँ पर एट्रियम सिस्टोल, थर्ड इवेंट होती है यहाँ पर वेंट्रिकुलर डायस्टोल और फोर्थ इवेंट होती है यहाँ पर वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो मेनली ये फोर इवेंट है। एट्रियल डायस्टोल में आपको बताया था 0.1 सेकंड का टाइम लगता है, एट्रियल डायस्टोल में 0.7 सेकंड का यहाँ पर टाइम लगता है, एट्रियल सिस्टोल के अंदर 0.1 सेकंड का यहाँ पर टाइम लगता है। इसके बाद में वेंट्रिकुलर डायस्टोल है, इसके अंदर टाइम लगता है यहाँ पर 0.5 सेकंड का टाइम लगता है, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, इसके अंदर यहाँ पर टाइम कंज्यूम होता है 0.3 सेकंड यहाँ। तो ये बात आपके साथ में हमने की। इसके बाद में हमने एक पाई डायग्राम के द्वारा यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कार्डियक साइकिल है। वी कैन से दैट द एट्रियल डायस्टोल एंड द वेंट्रिकल डायस्टोल बोथ इवेंट आर डन बाय द सेम टाइम। तो हम दिस इज कॉल्ड द एट्रियल डायस्टोल प्लस वेंट्रिकुलर डायस्टोल नोन एज जॉइंट डायस्टोल। तो ये इसके बाद में एक लेटेस्ट थ्योरी यहाँ पर आ गई, जॉइंट डायस्टोल डेवलप हो रहा है। तो when the development of the joint diastole, the cardiac cycle will divided into three phases. First is atrial systole, then second is ventricular systole, or third stage is joint diastole. Both type of chamber have joint diastole like atrial diastole or ventricular diastole. So collectively known as joint diastole. The 1 second time spent in the atrial systole and the 0.3 second time spent in the ventricular systole, but the remaining time 0.4 second time taken by the joint diastole. तो इस बात को हम यहाँ पर समझ चुके हैं। ये डायग्राम के द्वारा हम यहाँ पर कह सकते हैं कि किस प्रकार से ये एट्रियल और वेंट्रिकुलर रिएक्शंस होती है। तो हम देखिए, हमने यहाँ पर एक जनरल हार्ट का जो डायग्राम बनाया था, ये यहाँ पर डायग्राम बनाया था। ये समझने के लिए ये हमारा यहाँ हार्ट है। आप देखिएगा इसके अंदर ये सेप्टा है यहाँ। तो ये ऑरिकुलर, राइट ऑरिकुलर, लेफ्ट ऑरिकुलर, राइट वेंट्रिकुलर एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर. So this type of chamber found in the heart. Then the right auricular connect with the many type of blood vessels. So vena cava. There are three type of vena cava. First is pre-caval vena cava. Then second is post-caval vena cava. And then third is coronary sinus. The right auricle blood receive from the pre-caval vena cava, post-caval vena cava and coronary sinus. That type of blood are deoxygenated blood. That type of blood vessels, the blood receive from the tissues. What type of blood? So that type of blood known as deoxygenated blood. So the right auricle filled by the deoxygenated blood. Okay. In between the right auricle and left right ventricle connect by the a special type of
valve, this is called the tricuspid valve, and in between the two flap valve found in between the left auricle and left ventricle, this is called bicuspid valve. The left auricle connect with the pulmonary vein. The number of pulmonary vein, how many number of pulmonary vein, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर 4 pulmonary vein found in the human. These are open into the left auricle, left atrium. तो ये बात बच्चों यहाँ तक आप समझ में आई हुई है। ये एक जनरल स्ट्रक्चर लिए हम यहाँ पर कर चुके हैं कि किस प्रकार से एक हार्ट की स्ट्रक्चर होती है। यहाँ इसके बाद में आप देखिएगा, यहाँ मैंने बताया था कि यहाँ पर एक पल्मोनरी एओर्टा, यहाँ एक सिस्टमिक एओर्टा, और ये पल्मोनरी एओर्टा और सिस्टमिक एओर्टा गार्डेड बाय ए स्पेशल टाइप ऑफ वाल्व, दिस इज कॉल्ड एसएलवी। इसको हम क्या कहेंगे? एसएलवी कहेंगे। यहाँ पर ये भी क्या है बच्चों? ये भी है एसएलवी, राइट एसएलवी और लेफ्ट एसएलवी। So that type of structure found in human, it is simplified for the understanding structure आपके लिए बनाई गई है ये। अब कार्डियक साइकिल कंप्लीट होता है तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, दो बहुत टाइप ऑफ ऑरिकल है, कॉन्ट्रैक्ट है ईच ए टाइम, बट आर ए राइट ऑरिकल है कॉन्ट्रैक्ट अर्लियर। इस चीज का आप ध्यान रखें, यहाँ दोनों ऑरिकल है वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और राइट ऑरिकल है पहले स्टार्ट होगा और लेफ्ट ऑरिकल है वो बाद में स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर एक चीज और है, यहाँ मैंने कंडक्टिंग सिस्टम बताया था। कंडक्टिंग सिस्टम में यहाँ पर एक नोड है, यहाँ एक नोड है, इस नोड को हम कहेंगे ऐसे नोड, इस नोड को हम कहेंगे एवी नोड। इसके बाद में यहाँ से एक फाइबर निकलता है, यहाँ इसे कहेंगे बैकमैन बंडल, बैकमैन फाइबर, और यहाँ पर बंडल ऑफ हिज, और यहाँ आप कहोगे यहाँ पर किंज फाइबर। तो इस प्रकार का कनेक्शन हम यहाँ पर कंडक्टिंग सिस्टम में कर चुके हैं यहाँ। तो ये भी मैं यहाँ साथ इसके साथ थोड़ा रिवाइज करवाना चाह रहा हूं मैं। तो इस चीज को हम समझ चुके हैं। अब जब कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो रहा है तो इस कार्डियक साइकिल में आप देखिएगा पूरी की पूरी इन स्ट्रक्चर्स का यूज होगा, कंप्लीट स्ट्रक्चर है वो यूज होगी। तो कैसे यूज होगी यहाँ? तो हम कह रहे हैं कि एट्रियल डायस्टोल हो रहा है। एट्रियल डायस्टोल के टाइम क्या होता है? व्हाट स्ट्रक्चर्स, व्हाट कंडीशन, व्हाट इवेंट फाउंड इन ड्यूरिंग द एट्रियल डायस्टोल। तो यहाँ कंडीशन की बात करें, यहाँ एट्रियल डायस्टोल के समय, एट्रियल डायस्टोल का मीनिंग एक्सपेंशन ऑफ द एट्रिया एंड द कॉन्ट्रैक्शन इन द वेंट्रिकल्स। एट्रियल डायस्टोल के टाइम में यहाँ पर क्या होगा? या एक्सपेंशन होगा, ये दोनों एट्रिया फैलेंगे। यहाँ ये जैसे फैलेंगे तो यहाँ पर कह सकते हैं फिलिंग फेज ऑफ द एट्रियम, ब्लड से यहाँ एट्रियम फिल हो रहे हैं। राइट एट्रियम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से, और लेफ्ट एट्रियम है यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड से। ड्यूरिंग एक्सपेंशन ऑफ द एट्रिया, ड्यूरिंग डायस्टोल ऑफ द एट्रिया, द ब्लड कम इनटू द आरए एंड एलए रेस्पेक्टिवली ब्लड वेसल्स। तो ये बात हम यहाँ पर समझ गए। तो ब्लड यहाँ पर कंटिन्यू इसके अंदर आएगा ड्यूरिंग एट्रियल डायस्टोल। एट्रियल डायस्टोल है, उसमें 2 फेजेज है। एक फेजेज को हम कहेंगे यहाँ पर रैपिड फ्लो, रैपिड फ्लो, एक रैपिड फ्लो होगा, और दूसरी फेजेज को हम यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं कि सेकंड कॉन्ट्रैक्शन फेज है, कॉन्ट्रैक्शन फेज है, यहाँ ये डिवाइड कर सकते हैं। रैपिड फ्लो का मीनिंग है यहाँ, रैपिड फ्लो में यहाँ पर जॉइंट डायस्टोल होता है। जॉइंट डायस्टोल में यहाँ से ब्लड वेना केवा एंड वेन यहाँ से ब्लड डायरेक्ट कम इनटू द वेंट्रिकल्स थ्रू द ऑरिकल। तो इससे को हम कहेंगे रैपिड फ्लो। और कॉन्ट्रैक्शन फ्लो में यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑरिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उस समय यहाँ पर ब्लड वो आता है। तो हम 1 by 1 स्टेज की बात कर रहे हैं यहाँ पर। एट्रियल डायस्टोल जिसमें 0.7 सेकंड का टाइम लगता है, यहाँ 0.7 सेकंड में 0.4 सेकंड और 0.3 सेकंड, 2 टाइप में। रैपिड फ्लो में 0.4 सेकंड का टाइम लगता है, और कॉन्ट्रैक्शन फेज के अंदर 0.3 सेकंड का यहाँ पर टाइम है वो स्पेंड होता है। इस चीज का भी आप यहाँ पर ध्यान रखें। तो यहाँ पूछ सकते हैं कि रैपिड फ्लो होता है उसमें कितना टाइम लगता है? तो रैपिड फ्लो में यहाँ 0.4 सेकंड, और कॉन्ट्रैक्शन फेज में यहाँ पर 0.3 सेकंड का टाइम यहाँ पर स्पेंड होता है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड है वो रैपिड फ्लो के द्वारा यहाँ वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है यहाँ, और मिनिमम नियर अबाउट 20% ब्लड है वो यहाँ पर है जब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब आते हैं। बट अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या? डायस्टोलिक कंडीशन। डायस्टोलिक कंडीशन में यहाँ पर ब्लड की फिलिंग होगी, 0.7 सेकंड का टाइम लगता है, तो ब्लड इसके अंदर यहाँ पर फिल हो जाता है। जब ब्लड फिल होता है, ध्यान रखें इसमें आरए के अंदर, एलए के अंदर, तो यहाँ पर ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड है, ये क्लोजिंग रहते हैं यहाँ। ड्यूरिंग एट्रियल डायस्टोल ट्राइकस्पिड प्लस बाइकस्पिड विल बी क्लोज, ये क्लोज रहेंगे यहाँ। देन
यूस्टेकियन वाल्व एंड थिबेशियन वाल्व विल बी ओपन। तो ये यहाँ पर ओपन रहेंगे तो ये ब्लड क्या है, इसका इसमें आ जाएगा, इसका इसमें आ जाएगा, इसका इसमें आ जाएगा यहाँ। तो इससे आ रहे हैं यहाँ पर फिल बाय द ब्लड रेस्पेक्टिवली डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दी वेना केवा एंड पल्मोनरी वेन। तो इसे हम कहेंगे एट्रियल डायस्टोल की क्रिया। एट्रियल डायस्टोल के इवेंट जो यहाँ पर कंप्लीट होगा, ये बात आप बच्चों समझ गए होंगे यहाँ। अब देखिए यहाँ जैसे ये फिलअप हो जाएगा तो यहाँ ऐसे नोड है वो एक्टिवेट होगा। ऐसे नोड जैसे ही एक्टिवेट होगा तो इसकी वाल के ऊपर यहाँ पर, ये मैंने एरो इधर लगाया है, इसका मीनिंग इसकी वाल पर यहाँ प्रेशर लगेगा तो कॉन्ट्रैक्शन वेव यहाँ पर डेवलप होगी। यहाँ अब कॉन्ट्रैक्शन वेव डेवलप हो रही है जिससे दोनों एट्रिया यहाँ पर, बोथ एट्रिया एट ए टाइम विल बी कॉन्ट्रैक्ट, बट राइट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट अर्लियर देन दी लेफ्ट एट्रिया। इस चीज को आप ध्यान रखें, दोनों एट्रिया यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो यहाँ कॉन्ट्रैक्शन वेव विल बी डेवलप बाय दी ऐसे नोड। यहाँ बच्चों आप ध्यान रखें कि कॉन्ट्रैक्शन वेव है वो यहाँ सिस्टोलिक वेव है, किससे डेवलप हो रही है, ऐसे नोड से आएगी, एवी नोड, और कुछ वेव चली जाएगी बैकबेंड फाइबर से एलए के अंदर, लेफ्ट ऑरिकल की वॉल के अंदर, जिससे दोनों ऑरिकल है एक साथ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट आएंगे, कॉन्ट्रैक्शन होगा यहाँ पर। तो अब आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द आरए एंड एलए द प्रेशर विल बी डेवलप इन द वॉल ऑफ द आरए एंड एलए, देन ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड विल बी ओपन ड्यू टू द लोअर प्रेशर इन द वेंट्रिकल कंपेयर टू ऑरिकल। The opening of the tricuspid and bicuspid depended on the pressure, blood pressure found in the ventricle, not dependent in the auricle pressure. These type of valve like tricuspid valve, bicuspid valve, or AV valve, atrioventricular valve, or bicuspid valve, also known as mitral valve. Opening of these type of valve dependent on ventricular pressure, as well as closing of this type of valve dependent on also ventricular pressure. When the ventricular pressure below than the auricular pressure, the atrial valve or auriculoventricular valve will be open. When the ventricular pressure will be higher than the auricular pressure, the mitral valve or tricuspid valve will be closed. तो दिस टाइप ऑफ ओपनिंग डिपेंडेंट ऑन दी वेंट्रिकुलर प्रेशर। तो ये बात बच्चों आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड इन दोनों की ओपनिंग और क्लोजिंग किस पर डिपेंड कर रही है, तो इसके प्रेशर पर डिपेंड कर रही है कि प्रेशर यहाँ पर हायर होगा, यहाँ पर प्रेशर यहाँ पर हायर होगा तो ट्राइकस्पिड है, और बाइकस्पिड है यहाँ पर ये क्लोजिंग हो जाएगी, और प्रेशर यहाँ पर लो होगा, यहाँ प्रेशर यहाँ पर लो होगा तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड दोनों ओपन हो जाएंगे। अब आप देखिएगा यहाँ ऑरिकल के अंदर प्रेशर है वो हायर प्रेशर है, हायर प्रेशर होने से ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड है वो ओपन हो गए। यहाँ जैसे ही ओपन हो गए तो आरए ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम इनटू दी आरवी एंड the oxygenated blood from the LA come into the LV। तो इस प्रकार से the ventricle receive blood from the RA and LA respectively during the contraction of during the systolic of the both atria। तो then the ventricle will be filled by the blood। ओके ये बात आप समझ चुके होंगे। यहाँ पर तो इसको हम कहेंगे यहाँ auricular systole or auricular diastole। Auricular systole have only 1 second time during this event, that type of event। तो इससे घटना को, इस इवेंट को हम यहाँ जनरली क्या कहेंगे, auricular systole हुआ और auricular diastole हुआ। तो बच्चों ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर ये एक घटना हुई auricular, ध्यान रखें auricular डायस्टोल के टाइम में वाल्व की पोजीशन क्या है, ड्यूरिंग ऑरिकुलर डायस्टोल द पोजीशन ऑफ द वाल्व ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व विल बी क्लोज एंड ईवी यूस्टिकियन वाल्व एंड टीवी ट्राइकस्पिड यूस्टिकियन वाल्व एंड थिबेशियन वाल्व विल बी ओपन ड्यूरिंग एट्रियल डायस्टोल। अब कंडीशन उल्टी हो जाए, यहाँ पर ऑपोजिट हो जाए, एट्रियल सिस्टोल की कंडीशन है। इस केस में व्हाट
इज पोजीशन ऑफ द मेनी टाइप ऑफ वाल्व इन द हार्ट। तो अब आप क्या कहोगे, अब सिस्टोलिक कंडीशन आ रही है। सिस्टोलिक कंडीशन के समय आप देखिएगा ट्राइकस्पिड प्लस बाइकस्पिड विल बी ओपन, ऑपोजिट कंडीशन हो जाएगी। एंड ईवी यूस्टेकिन वाल्व और टीवी थिबेशियन वाल्व विल बी क्लोज। थिबेशियन और यूस्टेकिन वाल्व कहाँ होते हैं? यूस्टेकिन वाल्व मैंने कहा पोस्ट वेना केवा, पोस्टीरियर वेना केवा, और थिबेशियन वाल्व प्रेजेंट एट द साइट ऑफ कोरोनरी साइनस। अब ये वाल्व क्या कर रही है? बैकवर्ड फ्लो को यहाँ पर रोक रहे हैं, ब्लड को वापस नहीं जाने देंगे। तो ध्यान रखें, दोनों ऑरिकल यहाँ कॉन्टेक्ट होंगे तो ब्लड क्या होगा, यहाँ जाने का प्रयास करेगा यहाँ, उस समय ये वाल्व इसे को क्लोज कर देंगे। क्लोज कर देंगे तो ब्लड है वो बैकवर्ड फ्लो है वो नहीं होगा, ब्लड का केवल यूनिडायरेक्शनल होगा यहाँ पर फ्लो। तो इससे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड दोनों ओपन हो जाएंगे। ये ओपन हो गए तो ब्लड कहाँ गया? यहाँ आरवी और एलवी, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड है वो फिलअप हो गया। तो इस बात को हम यहाँ पर कहेंगे एट्रियल सिस्टोल। तो ये दो इवेंट यहाँ पर बच्चों हो गए, एट्रियल डायस्टोल और एट्रियल सिस्टोल। 1 by 1 इवेंट की बात करें यहाँ तो हम इस प्रकार से इसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके बाद में आप देखिए बच्चों, नेक्स्ट अपन देखें यहाँ एक और स्लाइड के द्वारा। तो अब वेंट्रिकल की बात करें हम यहाँ पर, वेंट्रिकल डायस्टोल और दूसरी घटना यहां पर वेंट्रिकल है, सेकंड इवेंट होगा यहां पर वेंट्रिकल सिस्टोल। ये क्या होता है? तो डायस्टोल में मैंने कहा 0.5 सेकंड का टाइम और सिस्टोल में 0.3 सेकंड का टाइम यहां पर स्पेंड होता है इस इवेंट को होने में। फिर हम वही बात करें यहाँ तो हमने कहा कि हमारे पास में क्या है, ये हार्ट है। इस हार्ट में क्या है यहाँ पर हमारे पास में? ये वेंट्रिकल है। इस वेंट्रिकल में ये चैम्बर है, ये आर ए है, ये एल ए है, ये आर वी है, ये एल वी है, ये यहाँ पर ऐसे नोड है, ए वी नोड है, ये ए वी नोड यहाँ पर फाइबर से, प्रकिंजे फाइबर से यहाँ पर वेंट्रिकल को कवर है। ये स्ट्रक्चर हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। यहाँ इस टाइप की स्ट्रक्चर एक प्रेजेंट होती है। अब देखिएगा हम कह रहे हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल की इवेंट कब कह रहे हैं? वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो रहा है तो वाल्व की पोजीशन क्या है और कैसी कंडीशन होगी? तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो रहा है। वेंट्रिकुलर डायस्टोल का मीनिंग ये वेंट्रिकुल इस प्रकार से एक्सपेंस हो रहा है, ये वेंट्रिकुलर कॉन्टेक्ट था, अब यहाँ पर क्या हो रहा है? एक्सपेंस हो रहा है। ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल ब्लड रिसीव फ्रॉम दी राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल रेस्पेक्टिवली। द राइट ऑरिकल blood distribute to the right ventricle and the left auricle blood distribute to the left ventricle। तो यहां से ड्यूरिंग ये इसमें ब्लड इसके अंदर आएगा यहाँ पर कब? जब ये डायस्टोल हो रहा है 0.5 सेकंड का हो रहा है तो इसमें क्या होगा? हम कह सकते हैं आरवी एंड एलवी बोथ आर फिलिंग ऑफ द ब्लड रिसीव फ्रॉम द आरए एंड एलए। आरए फ्रॉम द आरए deoxygenated blood receive and from the LA to the LV oxygenated और pure blood will be receive। तो इस प्रकार से ये ब्लड यहाँ पर फिल होगा। इसको हम कहेंगे या वेंट्रिकुलर डायस्टोल। जब ये फिलिंग हो रही है ब्लड की उस टाइम आप देखिएगा 0.5 सेकंड का जो टाइम लगता है, इस टाइम में यहां से कॉन्ट्रैक्शन वेव फ्रॉम दी एवी नोड, यहां से कॉन्ट्रैक्शन वेव स्प्रेड इनटू दी वेंट्रिकल थ्रू बंडल ऑफ हिज एंड द traveling of the contraction wave in wall of the ventricles, entire ventricles by the bundle of His or Purkinje fiber। तो कंट्रक्शन वेव है कंप्लीटली एंटायर वेंट्रिकल्स है इसको यहाँ पर कवर कर लेती है। तो इस बात को बच्चों हम यहाँ पर समझ गए। कब? जैसे जैसे इस साइड में तो ब्लड आ रहा है और एक साइड में वेव चारों तरफ से यहाँ इसको कवर कर रही है। तो दिस कंडीशन नोन दैट टाइप ऑफ कंडीशन नोन एज वेंट्रिकुलर डायस्टोल। अब वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो रहा है उस समय वाल्व की पोजीशन क्या है? आपसे पूछे वेल्व जो है उसकी पोजीशन क्या है? वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो रहा है यहाँ पर। तो वेंट्रिकुलर वाल्व की अपन देखें ट्राइकस्पिड प्लस बाइकस्पिड विल बी ओपन
and SLV, both type of SLV will be close, ये close होंगे। और हम यहां पर देखें आगे यूस्टेकिन वाल्व प्लस यहाँ टीवी थिवेशियन वाल्व ऑल्सो विल बी क्लोज, ऑल्सो विल बी क्लोज टाइप। तो इस टाइप से ये यहाँ पर वाल्व की पोजीशन रहती है ड्यूरिंग द डायस्टोलिक कंडीशन। तो ये डायस्टोलिक कंडीशन, ड्यूरिंग डायस्टोलिक कंडीशन ऑल चैम्बर्स है रैपिड, ड्यूरिंग रैपिड फ्लो ऑल चैम्बर्स है वो यहाँ पर रिलैक्स कंडीशन में होती है। तो वो बन जाता है जॉइंट डायस्टोल, जिसकी हम अलग से बात करेंगे यहाँ। तो अभी यहाँ पर आप देखिएगा जैसे जैसे इस वाल के ऊपर यहाँ प्रेशर लगा, ये मैं एरो प्रेशर या कॉन्ट्रैक्शन को शो कर रहा हूं यहाँ। तो जैसे जैसे ये प्रेशर लगा तो ब्लड फिलिंग हो गई किसमें, आरवी और एलवी में। तो ये था डायस्टोलिक कंडीशन, किसकी, वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक कंडीशन। तो ये बात बच्चों यहाँ पर समझ में आई। अब आप देखिएगा आगे नेक्स्ट जो रिएक्शन होती है आफ्टर द फिलिंग ऑफ द आरवी एंड एलवी respectively blood deoxygenated and oxygenated blood, then simultaneously the contraction wave also spreading in the entire ventricle wall. After dilation of the ventricle, filling of the blood, the contraction will be start in the ventricle. The contraction start in the ventricle at a time, but the left ventricle earlier than the right ventricle. तो ये हम यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ during ventricle contraction what will be position develop in the valve of the heart। तो हम यहाँ पर कहेंगे तो इस कंडीशन में क्या ये पोजीशन आ जाएगी, तो वाल्व की पोजीशन यहाँ पर ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड विल बी क्लोज, देन SLV will be open, SLV will be open, यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो during tricuspid and bicuspid will be closed, then after closing of this type of valve develop a special type of sound, this that type sound is called lub, LUB, lub sound। lub sound is a first heart sound। The lub sound starting develop during the beginning of the ventricular systole। अब आप देखिएगा यहाँ इसके अंदर क्या है, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन वेव चारों तरफ से नीले को घेर लेती है, यहाँ पर कवर कर लेती है, तो दोनों नीले एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बट एलवी अर्लियर होता है यहाँ पर। जैसे ये कॉन्ट्रैक्शन वेव यहाँ पर होगी तो यहाँ जो ये वाल्व था इस वाल्व को यहाँ पर क्लोजिंग कर देगी, ट्राइकस्पिड को और बाइकस्पिड को ये इसको क्लोज कर देते हैं। और ये जैसे ही क्लोज कर देंगे तो यहाँ इसके ऊपर और प्रेशर लगेगा, और यह प्रेशर है और लगेगा और प्रेशर लगेगा। तो यहाँ पर एक वाल्व है, यहाँ पर एक वाल्व है, इसको हम कहते हैं एसएलवी वाल्व कहेंगे। और एसएलवी वाल्व है यहाँ पर ओपनिंग हो जाएगी। तो बिगिनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन सिस्टोल इन द वेंट्रिकल, देन द एसएलवी विल बी ओपन एंड एवीवी विल बी closed। During closing of the AVV, the first heart sound will be developed, that is called lub sound। Okay, first heart sound called as a lub sound। इसलिए हम कहते हैं कि स्टेथोस्कोप से हम हियरिंग करते हैं तो लब हमें सुनाई दे रहा है, लब की हियरिंग कर रहे हैं, तो उस समय क्या हो रहा है, उस समय बिगनिंग ऑफ द एट्रियल सिस्टोलिक रिएक्शन हो रही है। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन है। और उस समय यहाँ पर ओपनिंग ऑफ दी एसएलवी है, राइट एसएलवी है और लेफ्ट एसएलवी है, इसकी यहाँ पर ओपनिंग हो जाएगी। जैसे ही ओपनिंग होगी तो ब्लड है वो एग्जिट फ्रॉम दी हार्ट, या ये ब्लड है वो एग्जिट हो जाएगा। तो इस बात को आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि कैसे यहाँ पर एग्जिट होगा। तो ये एक यहाँ पर इवेंट होता है जिसको हम कहेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल। कितना टाइम लगता है यहाँ पर, तो 0.3 सेकेंड का टाइम लगता है। तो इसे हम आज बहुत अच्छी तरह इसे
अब समझ चुके हैं, एक क्रिस्टल क्लियर है। हम यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट है, इसको आइसोलेट करके हम इस पॉइंट को कार्डियक साइकिल को हम यहाँ पर समझने जा रहे हैं। बच्चों पूरा का पूरा अटेंशन आप बोर्ड पे रखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द नीट एग्जाम। एग्जामिनर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। तो ये बात हम यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन की और रिलैक्सेशन की हम कर रहे हैं। इसके बाद में जो एक और यहाँ स्लाइड के द्वारा आपको बताऊं, एक और डायस्टोल आता है, इसको हम कहेंगे जॉइंट डायस्टोल है। इस चीज को हम कहेंगे जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल में हमने कहा एट्रियल डायस्टोल प्लस वेंट्रिकुलर डायस्टोल इज इक्वल टू जॉइंट डायस्टोल। हाउ मेनी टाइम स्पेंट इन द जॉइंट डायस्टोल? तो 0.4 सेकेंड टोटल है ऑफ दी वन कार्डियक साइकिल है, उसमें से इतना टाइम किसमें लगता है? जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल को हमें 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं स्टडी करने के लिए। एक को हम कहेंगे रैपिड फ्लो, रैपिड ब्लड फ्लो। रैपिड ब्लड फ्लो, रैपिड ब्लड फ्लो का मीनिंग यहां पर तेजी से ब्लड है वो फ्लो कर रहा है, इसमें यहां पर कितना टाइम लगता है? तो पॉइंट है, हम कह सकते हैं रैपिड ब्लड फ्लो हो रहा है, उसमें पॉइंट टोटल जो टाइम है इसको हम कहेंगे 0.4 सेकेंड लग रहा है, जिसमें जॉइंट डायस्टोल में एक रैपिड फ्लो होता है और एक यहाँ पर स्लो फ्लो होता है। स्लो फ्लो, स्लो फ्लो कब होता है? यहाँ पर ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल, यहां पर एक घटना और आ जाती है एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल से के टाइम क्या होगा? ब्लड कम इनटू दी वेंट्रिकल। ब्लड है वेंट्रिकल है उसके अंदर यहां पर आएगा। तो वेंट्रिकल के अंदर ब्लड 2 टाइम आता है, एक रैपिड फ्लो के टाइम आता है और एक स्लो फ्लो के अंदर यहां पर आता है। तो इस प्रकार से हम यहां पर इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। हम फिर यहां हर्ट के द्वारा इस बात को हमें समझने का प्रयास करें। तो आप देखिएगा ये हमारा जो हर्ट है, इसके अंदर अब यहां ब्लड वेसल्स है, यहां ब्लड वेसल्स है और यहां पर ब्लड वेसल्स है। ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल द ब्लड डायरेक्टली कम इनटू द ऑरिकल फ्रॉम द वेना केवा एंड pulmonary vein come into the auricles. Through auricles the directly come into the ventricles. Blood directly come into the ventricles through auricle. In this time the tricuspid and bicuspids are open. So from precaval, postcaval and coronary sinus the deoxygenated come into the RV, and from the pulmonary vein the oxygenated blood come into the LV, and all chamber are found in this condition. In that type of condition this is called relax stage. All type of chamber, 4 जो चैम्बर है, 2 ऑरिकल प्लस 2 वेंट्रिकल, ये क्या होंगे? यहाँ पर इसमें रिलैक्स कंडीशन में होंगे, डायस्टोल की कंडीशन में होंगे, प्रेशर सब में 0 हो जाएगा इसमें। तो इसलिए यहाँ पर जो प्री केवल, पोस्ट केवल और कोरोनरी साइनस से ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, थ्रू ऑरिकल एंड ट्राइकस्पिड डायरेक्ट कम इनटू द आरवी, एंड पल्मोनरी वेन है, यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो आएगा कहां पर? ऑरिकल के अंदर आएगा, बाइकस्पिड ओपन रहेगा तो डायरेक्ट है यहां पर एलवी के अंदर आता है। अब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द ब्लड, यहां ध्यान रखिए बच्चों, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द ब्लड है, अमाउंट ऑफ ब्लड इन वेंट्रिकल्स at this time come into the ventricles। कितना यहां पर ब्लड है? अपन कह सकते हैं 70 से लेकर 80% ब्लड है वो इस समय आता है। अब एक चीज ध्यान रखें, यहां पर जो ब्लड है वो 3 टाइप का ब्लड यहां पर होगा। एक ब्लड है वो यहां पहले से होता है, कभी भी वेंट्रिकल खाली नहीं रहते है, ये प्री ब्लड है यहां।
फिर इसके बाद में जब रैपिड फ्लो होता है तो उसमें मैक्सिमम फिलिंग हो जाती है यहां पर। तो ये ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल है, जॉइंट डायस्टोल है, उस समय जो ब्लड आया वो इस समय दूसरी कंडीशन में एक टाइप का ब्लड ये हो गया, सेकंड टाइप का ब्लड ये हो गया। थर्ड टाइप का ब्लड बच्चों आप देखिएगा कि उस समय आता है जब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होती है। यहां पर जो ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे उस समय जब ब्लड की फिलिंग होगी, अत्यंत बहुत ही कम ब्लड आता है इसमें, तो थर्ड टाइप का ब्लड इसके अंदर तब फिल होता है। इसको हम कहते हैं यहां पर ड्यूरिंग एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। तो थ्री टाइप का ब्लड इसके अंदर यहां पर फिलिंग है इसके अंदर हो रही है। अब देखो चेंबर नंबर 1, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2, 1 और 2, ये जो ब्लड होता है नियर अबाउट 105 ml ब्लड होता है। क्लियर बात? इस बात को आप समझ गए? यहां कितना ब्लड होता है? 105 ब्लड होता है। ड्यूरिंग एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन है कितना ब्लड आता है यहां पर? 25 ml आता है। तो आप कह सकते हो यहां पर 130 ml ब्लड, टोटल जो ब्लड है इस के अंदर कितना हो गया? 130 ml ब्लड यहां पर हो गया है ये। तो ये कंप्लीट फिलिंग ऑफ द वेंट्रिकल हम बता सकते हैं ये। तो इससे ये वॉल्यूम ऑफ द ब्लड की बात हो गई। लेकिन हमने यहां पर कहा कि जॉइंट डायस्टोल हो रहा है उसमें 80% फिलिंग ऑफ द ब्लड किसकी? वेंट्रिकल की हो जाती है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द ब्लड यहाँ एवरेज यहाँ परसेंट टू परसेंट वेरी कर रहा है, तो 70 to 80% डाटा है अपन ले सकते हैं। तो ये ब्लड इतना फिलिंग हो रहा है किसके अंदर? वेंट्रिकल, ईच वेंट्रिकल के अंदर इतना ब्लड फिल हो जाता है। तो इस बात को हम बच्चों यहाँ पर समझ गए हैं। इसके बाद में आप देखिएगा आगे हम चले तो नया अब एक टॉपिक बनता है, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिलेटेड विथ कार्डियक साइकिल। कौन कौन सा यहां पर वॉल्यूम है, किस टाइप का वॉल्यूम इसके अंदर फिलअप होता है, तो इस बात को हम यहां पर समझेंगे। ड्यूरिंग डायस्टोल द फिलिंग ऑफ द वेंट्रिकल नॉर्मली इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द ईच वेंट्रिकल टू अबाउट 120 मिलीमीटर और 120 to 130 यहां पर ml भी कह सकते हैं। 130 ml परसेंट टू परसेंट वेरी कर रहा है। एक डाटा दिया है यहां पर 120, तो हम 120 to 130 कह सकते हैं। दिस वॉल्यूम इज नोन एज एंड डायस्टिक वॉल्यूम और EDV। इस वॉल्यूम को हम क्या कहेंगे? EDV कहेंगे या एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कहेंगे यहां पर। देन as the ventricles empty during systole, the volume decreased by about the 70 ml, which is called the stroke volume. That is the volume of blood pumped by each ventricle in the aorta in one stroke of beat. एक बीट के दौरान वेंट्रिकल जब सिस्टोल हो रहा है उसमें हाउ मेनी ब्लड exit from the one ventricle, right ventricle or left ventricle. So what is the amount of blood exit during one beat, one ventricle systole? तो आंसर होगा यहाँ पर 70 ml blood exit from the ventricle. This phenomenon known as the stroke volume, this blood known as the stroke volume. इस बात को हम यहाँ पर समझ सकते हैं। The remaining volume in each ventricle is now about 50 ml. उसके बाद में कितना बचता है इसमें? तो हम इसे कहेंगे 50 ml कहेंगे, इज कॉल्ड ESV एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कहेंगे यहाँ पर। तो ये बच्चों यहाँ पर एक बात हो गई। इस बात को हम यहाँ पर समझ चुके हैं। अब देखिए एक चीज को मैं यहाँ पर समझाने का प्रयास करूंगा एक स्लाइड से, क्या कहना चाह रहा है, फिर मैं वही डायग्राम बनाना चाह रहा हूं। हम क्या कर रहे हैं, ये हार्ट है हमारे पास में, यहां पर आप देखिएगा 3 टाइप का ब्लड यहां पर प्रेजेंट है। एक ब्लड
वेंट्रिकल के अंदर पहले से यहाँ पर फिलअप है। कभी भी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो पूरा वेंट्रिकल यहाँ एम्प्टी नहीं होगा, खाली नहीं होगा, कुछ न कुछ उसमें ब्लड रह जाता है। ओके, इसके बाद में एक दूसरे टाइप का ब्लड होता है जो मैक्सिमम फिलिंग होती है इस ब्लड की, इस वेंट्रिकल की उस टाइम। इस ब्लड को हम क्या कहेंगे, ये रैपिड फ्लो ड्यूरिंग डायस्टोल, ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल है, जिसमें क्या हुआ था, रैपिड फ्लो ऑफ द ब्लड हुआ था। डायरेक्ट ब्लड यहां से यहां पर आ रहा था, ये यहां थी, ये ब्लड वेसल्स थी, और यहां से ब्लड डायरेक्ट इसके अंदर आ रहा था, ये डायरेक्ट इसमें एंटर कर रहा था। तो इस टाइम इतना ब्लड है वो फिलअप हो जाता है। ये ब्लड और ये ब्लड आप ध्यान रखिएगा, इसका डाटा बताया गया है। यहां चेंबर ए, ये पोर्शन ए है, ये पोर्शन बी है। यहां ए प्लस बी जो बताया है, इसका डाटा बताया कि कितना ब्लड होता है, तो नियर अबाउट 105 ml ब्लड है, उसमें फिलअप रहता है इसमें। अब आप कहोगे यहां पर थर्ड टाइप का जो ब्लड है, यहां ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स, आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल, ये फीलिंग होगी। यहां पर इतनी फीलिंग होगी, माइनर फीलिंग 20% ब्लड इस समय फीलिंग होती है, और 80% की फीलिंग इस समय होती है। एक डाटा लिया है, वैसे 70 to 80 होती है, या 10 to 20 होती है यहां पर, तो 20 to 30 होती है। ये मान लो हम यहां पर सी कर रहे हैं, सी में कितना ब्लड यहां पर है, डाटा लिया गया, 1 वेंट्रिकल है, उसके अंदर कितना ब्लड आता है, तो आप कहोगे 25 ml ब्लड आ गया। अब इन द वेंट्रिकल, ए सिंगल वेंट्रिकल, 1V इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 105 प्लस 25 ml इज इक्वल टू 130 ml ब्लड। हम एवरेज यदि हम देखें यहां पर पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहे हैं, तो 120 to 130 ml ब्लड फिल इन दी each ventricle during the diastolic condition of the ventricles। इस बात को आप समझ गए होंगे। अब ये जो ब्लड है क्या कहलाता है, इस ब्लड को व्हाट डू यू मीन अबाउट दिस टाइप ऑफ ब्लड आफ्टर फिलिंग ऑफ द वेंट्रिकल्स, इसको हम कहेंगे यहां पर ई एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। जब कंप्लीट डायस्टोल हो जाता है ऑरिकल का, आफ्टर complete diastole of the auricle, then the ventricle complete filling by the blood. Each ventricle have what amount of the blood, आप कहोगे this amount, that type of amount known as EDV, end diastolic volume। The end diastolic volume is one डाटा हम ले, मैक्सिमम डाटा हम ले तो 130 ml। ओके, EDV, इसको आप क्या कहोगे, EDV कहोगे। अब आप देखिएगा बच्चों, यहां पर अपना पूरा अटेंशन रखिए, क्योंकि पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग किया है। आफ्टर फिलिंग ऑफ द ब्लड, आफ्टर फिलिंग ऑफ द वेंट्रिकल्स, देन वेंट्रिकल will be start contraction, during contraction, during one beat, during one systole by the one ventricle, blood exit, blood out by the aorta। हम ओनली लेफ्ट वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं यहां पर। वन सिस्टोल, वन बीट, ड्यूरिंग वन बीट how many blood remove from the one ventricle, and what term use this type of blood removing? So this is called stroke volume। When the blood exit from the one ventricle in the systemic aorta or pulmonary aorta, this volume known as a stroke volume। So what is the stroke volume? SV, stroke volume or SV
SV is equal to 70 ml blood. SV is equal to 70 ml blood. From the EDV 130 ml blood, the 70 ml blood removed by the one heartbeat, a single systolic condition of the ventricles. Okay, then after systolic condition of the ventricle, some blood are removed, some blood are remaining in the ventricle. What happen about this blood? This condition known as ESV, and systolic volume is equal to EDV minus SV is equal to 130 minus 70 ml is equal to 130 minus 70 ml is equal to 60 ml. 60 ml blood remaining in the ventricle. The 60 ml is called ESV and systolic volume. That type of systolic volume are different